This video is related to the USA president elections and its process. Actually, president of USA is the prominent figure in the world politics, so that president of elections gets great importance in the world. The elections of president heads after 4 years. The elected president is the head of state and head of government, and he directs the executive branch of federal government and commander-in-chief of the United States of America. And he also responsible for the execution and enforcement of laws created by the Congress because he is the head of executive body, and also the president select his cabinet by its own, and the president and executive body are not answerable to any other institution. The US Constitution provides that a candidate for presidency must fulfill the conditions for the elections. First of all, he must be a natural born citizen of the USA. Means he वो क्या है वहाँ का क्या है natural born हो वहाँ का पैदाइशी हो. Second one is he must not be less than 35 years of age. It means the member who is more than 35 year of age, he will be eligible for the candidate of president. And third one is he must have lived in a USA for not less than 14 years. और उसने कहा कि कम से कम 14 साल से कम टाइम वो क्या है यूएसए में ना रहा हो, 14 साल से ज्यादा रहा हो. ठीक है. US Constitution also provides the tenure and re-eligibility of the president. Firstly, President of USA hold office for the 4 years term. It means 4 साल के लिए क्या है president elect होता है और after 4 years new elections होते हैं and eligible for only 2 terms consecutively. ठीक है. These are the basic requirements for the candidate. Now I'm going to discuss the process of president election. Actually, the president elections based on 4 steps. First one is caucuses and primaries. Second one is national convention. Third one is general elections, and fourth one is electoral college. Actually, 1 year before the elections, candidates from the two parties, political parties of the USA, Democrats and second one, Republican, begin their campaigns trials. They set up their terms and conditions and teams and start going on tour around the country to really for support and fundraising for their campaigns. Mean के 1 साल पहले ही यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसका एक खास क्या है कंसेप्ट है कि बिफोर 1 ईयर जो भी कैंडिडेट्स होते हैं फॉर कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट वो तमाम के तमाम क्या है अपनी रैली स्टार्ट कर देते हैं, कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं इन द फेवर ऑफ देयर पॉलिसीज एंड देयर पार्टीज एंड ऑल्सो फंड रेजिंग करते हैं अपनी कैंपेन्स के लिए. आफ्टर दैट कैंडिडेट्स फ्रॉम बोथ पार्टीज participate in television debates. During these debates, each candidate will have to answer tough questions like regarding the new policies, previous work, or government institutions, new strategies to overcome the issues and problems, and also defend their stance on issues and policies against the other candidates. Mean कि जो भी next candidate means कोई भी next president का candidate है वो डिबेट से क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है उसमें लाइव टेलीकास्ट वो सेशन होता है और उसमें क्वेश्चन आंसर किए जा रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट या आपकी पार्टी जब आएगी इन इन फॉर द नेक्स्ट 4 years वो क्या स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस करवाएगी, क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाएगी गवर्नमेंट की बेटरमेंट के लिए, स्टेट की बेटरमेंट के लिए, और इन कंपैरिजन जो दूसरी पार्टी है उसकी पॉलिसीज के से ज़्यादा क्या बेहतरीन आपकी पार्टी में है. Actually, first step of the president election is the nomination of the candidates from both parties. So this process is divided into two parts: caucuses and primaries. In caucuses, party members select the best candidate through a series of discussions. Means there are many people who want to be president or vice president, each with their own ideas about how to government should work and what type of strategies will adopt for the future development of state. People with similar ideas belong to same party. Then the process of caucuses come in and select the best candidate through a series of discussion. Means कि
किस डायरेक्शन में, कि जो ये मल्टीपल पर्सन्स हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम क्या हैं, एलिजिबल हैं या हम भी प्रेसिडेंट बनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनमें से मल्टीपल जो पर्सन्स होते हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को वाया डिस्कशंस एंड ओपन वोटिंग क्या है, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट द सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरीज। पार्टी मेंबर्स वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट दैट विल रिप्रेजेंट देम इन जनरल इलेक्शंस। फिर उसके बाद क्या है, प्राइमरीज में उन्हीं जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से पहले सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं दोनों पार्टीज में उनको वोट दिया जाता है कि आया ये लोग जो हैं वो आगे फर्दर हमें किसमें, जनरल इलेक्शंस में रिप्रेजेंट करेंगे। और उससे पहले नेशनल कन्वेंशन जो इसका सेकंड स्टेप है उसके अंदर जो ये प्रोसेस है प्राइमरी कॉकसेस एंड प्राइमरीज का, बेसिकली ये स्टार्ट हो जाता है इन द बिगनिंग ऑफ February. The main focus of both parties will be on the results from Iowa, New Hampshire, Nevada and South Carolina. एक्चुअली ये वो वाले स्टेट्स हैं यूएसए की जहाँ से फाइनली डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी मेजोरिटी में आएगी, क्योंकि जैसे हर कैंडिडेट को या हर पार्टी को पता होता है कि ये स्पेसिफिक जो स्टेट है या स्पेसिफिक इलाका है ये हम यहाँ से हमें वोट मिल ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सास है, टेक्सास जो है वो रिपब्लिकन का जो है वो स्पेसिफिक इलाका है। रिपब्लिकन पार्टी को पता है, जो कि यूएसए की पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पता है कि यहाँ से वोट जो है मेजोरिटी वोट मुझे ही मिलना है, और जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट मिलता है तो उस स्टेट के तमाम इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो उसी पार्टी के पास चले जाते हैं। ऐसे ही सेम लाइक जो न्यूयॉर्क है या कैलिफोर्निया है वो किसकी, वो डेमोक्रेट्स का स्पेसिफिक इलाका है, वहां से डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलते हैं। ठीक हो गया। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर डिसाइडेड नहीं है, वो किसी भी वक्त मतलब उनका स्पेसिफिकली नहीं पता कि वो किस पार्टी को वोट करें। उनमें ये 2-3 स्टेट्स आती हैं जो इसमें आवा है, न्यू हेम्स्फेयर है, नेवाडा है एंड साउथ कैरोलिना है। ये जो स्टेट्स हैं ये एट द एंड, इवन दो आगे जाके इनमें नेब्रास्का भी है और एक और स्टेट भी है, वो भी क्या है उनसे भी डिसाइड होता है कि आया कि कौन सी इनके ऊपर इन दोनों पार्टीज का फोकस ज्यादा होता है कि इधर से अपना वोट बैंक जो है वो जनरेट करना है, वो ज्यादा से ज्यादा लेना है। And then second step, basically after this each party holds national convention, means कि जो जब प्राइमरीज एंड कॉकसेस में से जो मेंबर्स इलेक्ट और सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट एंड देन इलेक्ट हो जाते हैं बाय वोटिंग विद इन पार्टी, वो उसके बाद नेशनल कन्वेंशन में आ जाते हैं। और नेशनल कन्वेंशन में दोनों पार्टीज अपने फाइनल जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज होती हैं जो कि सिलेक्ट होके आते हैं उनको डिस्क्लोज करते हैं, और स्टेट डेलीगेट्स फ्रॉम द प्राइमरीज एंड कॉकसेस सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पीपल विल now endorse their favorite candidate, and then both parties will be official announce the presidential nominee at the end of session. It means कि जो ये सेशन नेशनल कन्वेंशन का सेशन है जब वो एंड होता है उसमें उसके एंड में अपने फाइनल कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डेमोक्रेट है और रिपब्लिक है, जैसे जो रिपब्लिकन पार्टी है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस पार्टी से मेंबर है, और जो जो बाइडन है वो डेमोक्रेट पार्टी से है। ठीक है, इसी तरह इन दोनों पार्टीज ने क्या है अपने अपने कैंडिडेट्स जो फाइनल प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स हैं उनका नाम डिस्क्लोज किया है, तो रिपब्लिकन से ट्रंप और डेमोक्रेट से जो बाइडन। और करंट सिनेरियो देखिए तो इसमें इस साल 2024 में नवंबर 2024 में जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो हैं इन नवंबर फर्स्ट वीक में कंडक्ट होंगे, जो कि उनका डेट डिसाइड किया होता है कि हर 4 साल बाद नवंबर के फर्स्ट मंडे के बाद जो ट्यूसडे होता है उसमें वो इलेक्शन डे जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। और पूरे यूएसए में तमाम 50 स्टेट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स और वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स के लिए वोट कास्ट करती हैं। नेशनल कन्वेंशन के एंड में जो है जाहिर सी बात वो जब डिस्क्लोज कर देते हैं, जो टिकट जारी करते हैं, तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो एक्सेप्टेंस स्पीच देता है कि जब उसको टिकट जारी किया जाता है, और उसके बाद क्या है फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जनरल इलेक्शंस। In this stage or in this step, people in every state across the country vote for one president and vice president in November first Tuesday of first week after Monday. They cast their vote for elections of the president. जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर 4 साल के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है वोट कास्ट किए जाते हैं फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और जो सारा प्रोसेस है इसके इलेक्शन का ये 1 साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है। आई मीन कंपेन्स, डिबेट्स, अपना जो अपनी स्टेट है उसका टूर, उसमें अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करना, उनकी स्ट्रेटेजीज को, उनके प्लान्स को डिस्क्लोज करना, ये तमाम प्रोसेस इलेक्शंस का पार्ट है।
When people cast their vote, they are actually voting for a group of people called electoral college. Basically, electoral college is a fourth step of president elections process. Except in these states, मेन और नेब्रास्का जो दो स्टेट्स हैं उसकी उनके अलावा जहां पर भी कैंडिडेट्स जो मेजोरिटी वोट इलेक्टोरल कॉलेज के लिए जो भी मेजोरिटी वोट जिस पार्टी को जाते हैं वो तमाम के तमाम उस ए स्टेट के वो जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं उसके वोट्स तमाम के तमाम उस पार्टी को है। अगर टेक्सास से मेजोरिटी वोट्स रिपब्लिकन ने लिए हैं तो तमाम के तमाम इलेक्टोरल वोट्स रिपब्लिकन को मिलेंगे। अगर डेमोक्रेट्स ने लिए हैं तो वो सारे डेमोक्रेट्स पार्टी के पास चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है इसके बाद जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो स्पेसिफिक एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो उसके बाद प्रेसिडेंट के जो दोनों नॉमिनेशन होते हैं वोट कास्ट उसको करते हैं। बेसिकली यहीं से क्लियर हो जाता है, इस प्रोसेस के बाद ही जनरल इलेक्शंस के बाद ही क्लियर हो जाता है कि दोनों पार्टीज में से का कौन सा मेंबर जो है या जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, लास्ट वन स्टेप इज इलेक्टोरल कॉलेज। दिस इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच स्टेट in a number proportional to the state's population cast their vote and determine who will be the next president. Each state gets a certain number of electors based on its representation in Congress. बेसिकली जो जितनी भी हमने अगर इससे पहले ये बात करूं तो जितने भी नंबर ऑफ कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं उसके इक्वलेंस ही इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं और हर जो स्टेट है उसको अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन लाइक पॉपुलेशन वाइज कि इस इलाके की इतनी पॉपुलेशन है उसके उसी के अकॉर्डिंगली उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीट्स जो हैं उस इलाके वाइज दी जाती हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब में पंजाब की पॉपुलेशन की वाइज उतनी सीट उसकी नेशनल असेंबली में है। केपी की है तो केपी की पॉपुलेशन वाइज है। ठीक हो गया। इसी तरह उनकी जो वो कहते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनकी टोटल नंबर है 38, जिसमें क्या है कांग्रेस के टोटल मेंबर है 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के और 100 मेंबर्स हैं सेनेट के। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हो गए 435 एंड 100 मेंबर्स हो गए सेनेट के। ये दोनों मिलाकर हो गए 535 और 3 मेंबर्स जो हैं इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के ऐड किए जाते हैं। तो ये टोटल नंबर हो गया इलेक्टोरल कॉलेज के 538 मेंबर्स। ठीक है, ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। और जाहिर सी बात है कि द कैंडिडेट हु गेट्स मोर देन हाफ लाइक 270 और वही मेंबर क्या होगा प्रेसिडेंट होगा नेक्स्ट क्या है यूएसए का। तो ये तो था कि पूरा एक प्रोसेस जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस का था। इसका अगर इन एक्चुअल में देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इनके इलेक्शंस इनडायरेक्ट ही होते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट के उनका मकसद क्या होता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं उनको वोट कास्ट करते हैं 50 जो 50 स्टेट्स हैं यूएसए की, वो एट दी एंड जब इस प्रोसेस के बाद वही जो 538 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्शंस को जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको क्या कहते हैं वोट कास्ट करते हैं मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स को, कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट्स को। लेकिन अगर इन एक्चुअल देखा जाए तो जब फांजाई सी बात है जब पता लग गया कि फलां पार्टी ने मेजोरिटी वोट ली मतलब डेमोक्रेटिक ने ज्यादा वोट लिए हैं या रिपब्लिकन ने, तो वो वहीं से क्लियर हो जाता है कि जिस पार्टी के वोट्स ज्यादा हैं मेजोरिटी केसेस ऐसे ही हैं कि वो वही पार्टी फिर आगे क्या है वही फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ जाती है। और ये दोनों क्या है जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाते हैं ये नवंबर में स्टार्ट होते हैं और ये सारा प्रोसीजर और जनवरी नेक्स्ट ईयर ऑफ द जनवरी 20th ऑफ द जनवरी क्या है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और टेकिंग सेरेमनी प्रॉपर वे में क्या है अपने गवर्नमेंट को कहते हैं कि उसको इनॉग्रेट करते हैं या उसकी इनॉग्रेशन करते हैं। ये था जी प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शंस।